नमस्कार। असम आदित्य से मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की पहली खबर। देशवासियों को कोविड-19 के खतरे से बचाने के लिए 100 करोड़ लोगों को हाल ही में सफलतापूर्वक कोविड वैक्सीन प्रदान किया गया है। आज डिब्रूगढ़ के आरोग्य भवन अस्पताल की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कोविड योद्धाओं के लिए आभार व्यक्त समारोह का आयोजन किया गया। देशवासियों को कोविड-19 के खतरे से बचाने के लिए 100 करोड़ लोगों को हाल ही में सफलतापूर्वक कोविड वैक्सीन प्रदान किया गया है। आज डिब्रूगढ़ के आरोग्य भवन अस्पताल की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कोविड योद्धाओं को आभार व्यक्त समारोह का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि मारवाड़ी आरोग्य भवन अस्पताल के वैक्सीन सेंटर के माध्यम से डिब्रूगढ़ में कई हजार लोगों को कोविड वैक्सीन उपलब्ध कराई गई है। आरोग्य भवन अस्पताल को सरकार के 100 करोड़ के टीकों के लक्ष्य में भागीदार बनने पर गर्व है। डिब्रूगढ़ के विधायक प्रशांत फुकन समारोह में मौजूद रहे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया, साथ ही अस्पताल द्वारा ली गई भूमिका का भी आभार जताया। मारुरी आरोग्य भवन हस्पिटालर जी एक वैक्सीनेशन केंद्र आरोग्य उद्यानर होई आमी भारतीय जनता पार्टीर लगते भारतर देशर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डांगरियाक आज अशेष धन्यवाद ज्ञापन करछो। एदरे आमार जिসকল कोविड वारियर और जी वैक्सीनेशन सेंटार लगत जड़ित जिসকল चिकित्साकर्मी आछे तेनलोকক एदरे उत्साहित करार बारे आजिर এই দিনটোত जी एक महत् लक्ष्य उद्देश्य जी वैक्सीनेशनर प्रक्रिया आरम्भ হৈছিল 100 कोटी जनताक এই মুহূৰ্তলৈকে যেহেতু ভ্যাকসিনেশনৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে গতিকে আমি এই যি অভিযান ভ্যাকসিনেশন অভিযানত নিজকে অংশীদাৰ হ'বলৈ পাই আমি নিজেও গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু আমি দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন। আমাৰ এই অতিমাৰী কোভিড-19ৰ যি ধৰণে বিভীষিকা আৰম্ভ হৈছিল তাৰ পাছত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰচেষ্টাত কোভিডত প্ৰায় আজিৰ দিনটোলৈকে প্ৰায় 100 কোটি ব্যক্তিক কোভিডৰ ইনজেকশ্যন দিয়াৰ ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণ হ'ল। তাৰ কাৰণে আমি ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ এই আৰোগ্য ভৱনৰ কোভিড চেণ্টাৰৰ ভেকচিনেশ্যন চেণ্টাৰৰ পৰাই তেখেতক আমি বহুত 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 ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে কোভিড ৱাৰিয়াৰসকলে যি ধৰণে আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰি এটা দিনো তেখেতসকলে বন্ধ নকৰাকৈ আজি গত দিনবিলাকত তেখেতসকলে যি ইনজেকশ্যন দিয়াৰ যি প্ৰতিষেধক বেজী দিয়াৰ যি ব্যৱস্থা হাতত ল'লে মই তেখেতসকলকো বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেখেতসকলৰ উত্তৰ কামনা কৰিছোঁ আৰু আমি ডিব্ৰুগড়বাসী ৰাইজৰ ফালৰ পৰা তেখেতসকলক বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু দ্বিতীয়তে আজি ডিব্ৰুগড়বাসী ৰাইজে শুনি ভাল পাব যে আজিৰ দিনটোতেই আজি মই বিধায়ক হিচাপে ডিব্ৰুগড়ত 100% কোভিডৰ ভেকচিনেশ্যন হৈ গ'ল বুলি মই আজি ঘোষণা কৰিলোঁ। এইখিনি কথাৰে আগন্তুক দিনত মাৰোৱাৰী আৰোগ্য ভৱনৰ যি তেখেতসকলৰ কৰ্তৃপক্ষই যি সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ালে আগন্তুক দিনতো তেখেতসকলৰ পৰা এই সহায় সহযোগিতা পাম বুলি আশা ৰাখিছোঁ। তেখেতসকলকো মই বিধায়ক হিচাপে আৰু ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ ফালৰ পৰাও তেখেতসকলক আমি বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আমি পুনৰবাৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক আমাৰ ফালৰ পৰা আমি শতকোটি প্ৰণাম জনাইছোঁ আৰু তেখেতৰ এই প্ৰচেষ্টাই যি 100 কোটি ব্যক্তিক আমাৰ ভেকচিনেশ্যন দিয়াৰ কাৰণে যি ব্যৱস্থা হাতত ল'লে এই ব্যৱস্থা আৰু তীব্ৰতৰ কৰি বাকী যিখিনি মানুহ আছে সেইখিনি মাজতো দি শেষ কৰাৰ ব্যৱস্থা হাতত ল'ব বুলি আশা ৰাখি তেখেতক আমি পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट असम आदित्य। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज समग्र राज्य के साथ साथ असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार लखीमपुर जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने 2 घंटे का हड़ताल कार्यक्रम लागू किया गया। असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार लखीमपुर जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने आज 2 घंटे का हड़ताल कार्यक्रम लागू किया गया। भाजपा सरकार के खिलाफ हाथों में प्ले कार्ड लेकर विभिन्न नारों के साथ ये हड़ताल प्रदर्शन किया गया।
पेट्रोल डीजल आदि सहित जरूरतमंद खाद्य पदार्थों में बढ़ती महंगाई को रोकने की मांग को लेकर हड़ताल के जरिए सरकार को आगाह किया गया। আজি আমি দেশৰ পৰিস্থিতিৰ ওপৰত যিটো সমস্যা হৈছে আৰু বিজেপি চৰকাৰখনে জনসাধাৰণৰ ওপৰত যিটো মাধমাৰ মূল্যবৃদ্ধি মাধমাৰ দাঙি ধৰিছে তাৰ ওপৰত আমি সংগীত ৰাখি আজি অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ নিৰ্দেশ ক্ৰমে আজি লখিমপুৰ জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত আজি লখিমপুৰ জিলা কংগ্ৰেছৰ সৌজন্যত আজি আমি অৱস্থান ধৰ্মঘট কৰিবলগীয়া হৈছে। আজি আপোনালোকে সকলোৱে জানে যি পৰিস্থিতিৰ ওপৰত ভাৰতবৰ্ষ এতিয়া উঠি অহা নতুন প্ৰজন্মৰ যিটো ভৱিষ্যত অন্ধকাৰ বুলি ঠেলি দিছে, সেইটো ক্ষেত্ৰত আজি বিজেপিয়ে হৈ পেলাই আজি কংগ্ৰেছে জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থত ভাৰতবৰ্ষৰ দেশখনৰ স্বাৰ্থত আজি অৱস্থান ধৰ্মঘট কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে। लखीमपुर से राहनुद्दीन अहमद की रिपोर्ट, असम आदित्य। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के अवसर पर डिगबोई इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन असम ऑयल डिवीजन ने स्वतंत्र भारत में 75वें आजादी के अमृत महोत्सव के अनुरूप समाज से भ्रष्टाचार को मिटाने हेतु सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया। वर्ष 1999 से केंद्रीय सतर्कता आयोग के तहत सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के अवसर पर डिगबोई इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन असम ऑयल डिवीजन ने स्वतंत्र भारत में 75वें आजादी के अमृत महोत्सव के अनुरूप समाज से भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया है। बुधवार को डिगबोई में आईओसी प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित एक संवाद सम्मेलन को संबोधित करते हुए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ऑफ असम ऑयल डिवीजन के महाप्रबंधक हितोजीत भट्टाचार्य, किशोर दत्ता, मृदुल श्याम ने कहा कि इस सप्ताह के दौरान आयोजित स्वतंत्र भारत 75 ईमानदारी के साथ आत्मनिर्भरता शीर्षक विषय को लेकर आम जनता और छात्रों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया है। साथ ही समाज से सारे भ्रष्टाचार को खत्म कर एक स्वच्छ समाज और देश बनाने का आह्वान किया। ভিজিলেন্স এৱাৰনেছ উইক পাতিছিলোঁ, এইটো CBCৰ প্ৰগ্ৰাম হয় আৰু আমাৰ মুখ্য উদ্দেশ্য আছিলে এই বছৰৰ যিটো থিম, সেই থিম আছিলে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়া ৰিলায়েন্স এট 75 আৰু এই থিমৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই আমি আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া যিমান স্কুল আছিলে সেই স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক ইনভলভ কৰিছোঁ যাতে তেওঁলোকে সজাগ হয় আৰু তাৰে লগতে আমাৰ এমপ্লয়ি, কণ্ট্ৰেক্টৰ, ভেণ্ডৰ, দেন আমাৰ প্ৰেছৰ যিখিনি আমাৰ সতীৰ্থসকল আছে সকলোৰে লগত সংযোগ স্থাপন কৰিব খুজিছোঁ যাতে CBCৰ এইটো যে মেছেজ, সেই মেছেজ চবলৈ যাতে বিয়পি যায়। কাৰণ প্ৰাইমাৰী পাৰ্পাছ হৈছে চিটিজেন্স এৱাৰনেছ, চিটিজেন্স পাৰ্টিচিপেশ্যনটো বঢ়োৱা আৰু তাৰে জৰিয়তে এটা ট্ৰান্সপাৰেণ্ট, কৰাপশ্যন ফ্ৰী ভাৰতবৰ্ষ গঢ়ি তোলা আৰু তাত আমাৰ ইণ্ডিয়ান অইল কৰ্পোৰেশ্যন হিচাপে আমাৰ কৰ্পোৰেশ্যনৰ যিখিনি দায়িত্ব আছে সেইখিনিও আমি পৰিপালন কৰিব বিচাৰিছোঁ। আৰু এই গোটেই প্ৰগ্ৰামটো 31 অক্টোবৰ চৰ্দাৰ বল্লভ ভাই পেটেল তেখেতৰ জন্মদিনটো ৰাখি পেলাই প্ৰগ্ৰামখিনি সজোৱা হৈছিলে। প্ৰতি বছৰে সেইটো কৰা হয় কাৰণ তেখেতক আইকন হিচাপে ধৰা হয়, ইণ্টিগ্ৰিটিৰ আইকন। গতিকে তেওঁক সোঁৱৰি লৈ পেলাই আমি এই প্ৰগ্ৰাম পাতিছোঁ আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যে আমাৰ এই প্ৰচেষ্টা সফল হ'ব। আগলৈ আমাৰ এই প্ৰচেষ্টাৰ ফল আমাৰ স্কুলীয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ কেৰেক্টাৰ বিল্ডিং এক্সাৰচাইজৰ মাজৰ পৰাই আমি দেখা পাম। डिगबोई से मनोरंजन दास की रिपोर्ट, असम आदित्य। और अब समय है देश दुनिया के इतिहास में आज यानी कि 21 अक्टूबर की तारीख पर दर्ज अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताने की। आज के दिन सन 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली की गद्दी संभाली थी। 1555 में इंग्लैंड के संसद ने फिलिप को स्पेन के राजा के रूप में मानने से मना किया था। 1854 में फ्लोरेंस नाइटिंगेल को 38 नर्स कर्मचारियों के साथ क्रीमिया युद्ध में भेजा गया था। 1871 में अमेरिका में पहला अव्यवसाय आउटडोर एथलेटिक खेल हुआ था। 1918 में मार्गेट ओवन ने 1 मिनट में 170 VPM की टाइपिंग स्पीड के साथ विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया था।
1931 में प्रसिद्ध हिंदी फिल्म अभिनेता शम्मी कपूर का जन्म हुआ था। 1934 में जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था और इसी साल नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की थी। 1939 में हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री और नर्तकी हेलेन का जन्म हुआ था। 1951 में भारतीय जन संघ की स्थापना हुई थी। 1970 में नॉर्मन ई बारलॉग को नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था। 1999 में सुकर्णो पुत्री मेघावती इंडोनेशिया की उपराष्ट्रपति चुनी गई थी। 2003 में चीन ने 4B कैरियर रॉकेट से 2 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया था। 2005 में सामूहिक बलात्कार की शिकार पाकिस्तान के मुख्तारन माई वुमेन ऑफ द ईयर चुनी गई थी। 2007 में भारतीय मूल के अमेरिकी बॉबी जिंदल ने अमेरिका के लुसियाना प्रांत के गवर्नर पद पर अपनी जीत दर्ज की थी। 2012 में साइना नेहवाल ने डेनमार्क ओपन सुपर सीरीज खिताब अपने नाम कर लिया था और इसी साल बॉलीवुड के रोमांस किंग कहे जाने वाले यश चोपड़ा का निधन हुआ था। और आज ही के दिन सन 2014 में प्रसिद्ध पैरालंपिक धावक ऑस्कर पिस्टोरियोस को अपनी प्रेमिका रीवा स्कीइंग कैंप की हत्या के लिए 5 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए असम आदित्य। नमस्कार।